education and PhD in education. His area of specialization are philosophy, Indian philosophy of education, teaching of science and biology, education and rural development, primary education, curriculum development, higher education, school education management, basic education, and Sarvodaya philosophy. He is associated with many other positions like Dean, Faculty of Law, Member, Executive Council of Academic Council, Dean, Board of Studies, Director, Center for Vivekananda Studies, Director, Center for Gandhian Thoughts. He is also member, Board of Studies, IGNOU, New Delhi, and Vishwa Bharati Shanti Niketan. Sir has his expertise has been utilized by the various universities like University of Delhi, University of Jammu and Kashmir, MD University Rohtak, University of Mumbai, Banasali Vidyapeeth, Rajasthan Vidyapeeth, Goa University, MS University Baroda, Kota Open University, and Vishwa Bharati, Barkatullah University Bhopal, and almost all universities, including Aligarh Muslim University, Aligarh. Sir is a member of NAC and NCT Evaluation Panel for Teachers Education Institution in India. He shared his expertise with national bodies like MHRDs, and I will say the constitutional bodies, MHRDs, NUPA, NCRT, NAC, NCT, UDC, UPSC, ICSR, and many more such other state universities and higher education and public service commissions. Dear participant, as far as the contribution of and development of Sir is concerned, he has a unique feature for, I will say, the writing the script of more than 40 films. And he edited, translated, and moderated, and subject experts, etc. Sir has successfully, I will say, the completed PhD for 25 students under his supervision. He is stated with publication of several articles and papers at national, national, and international level. Sir is the leading contributor in workshops, seminars, and conferences in the field of education. Entire booklet is required to list all his contribution in such a various literary and academic aspects. In several awards, he has received several awards have been confirmed to him, and the recent one is, जो मैं आपको बताऊं कि अभी recently इनको जो award मिला है वो शिक्षा श्री सम्मान by the government of Uttar Pradesh. Without any delay, because we have already 5 to 10 minutes late, I will invite sir with this couplet that जमाने से आगे तो बढ़िए मजाज, जमाने से आगे तो बढ़िए मजाज, जमाने को आगे बढ़ाना भी है. Sir, with these words, now the mic over to you. Thank you, UGC HRDC personnel. Thank you very much. Thank you. I feel honored and elated to be associated with the HRDC AMU because I have, in fact, in comparison to many other HRDCs in India, I'll not name, some of my best experiences are with HRDC or MMTCs like AMU. Friends, the topic which has been given to me is Indian knowledge system and integrating indigenous knowledge into teacher education curriculum. First, let me settle 3-4 issues before going to that. First is the language. I have been made to understand that since there are many participants from various parts of India, they may not be able to understand Hindi. Therefore, I have to speak in English and English only. If it is wrong, please correct me. Is there someone who just cannot understand in Hindi? क्या आप में से कोई है जो हिंदी बिल्कुल ना समझ पाए, वरना फिर मैं मिक्स्ड भाषा में बोलूं या प्योर शुद्ध इंग्लिश में ही बोलने का प्रयास करूं? आप मुझे फीडबैक दीजिए. यदि है तो अपना वीडियो ऑडियो ऑन कीजिए और बताइए. दिस इज वन. Both language, sir. Okay. No, sir. No, sir.
नो हिंदी हिंदी ओनली। मैं गुजरात आई डू नॉट नो गुजराती फ्रेंड। गुजराती लैंग्वेज इन बिटवीन हिंदी। ओके, Sir, it's a better if you use I should ask the bilingual. other way around. Is there someone from north, east or extreme south who just cannot understand English? क्या कोई ऐसा है जो इंग्लिश बिल्कुल ना समझ पाए? That settles it. So I'll be speaking in a mixed language, kind of. Technical terms and quotations in English, rest in Hindi. Second, फ्रेंड्स, पर्सनली मैं ऑनलाइन मोड के बहुत फेवर में नहीं रहता। इसकी दो इम्प्लीकेशंस हैं। पहली इम्प्लीकेशन तो ये है कि मैं रूबरू आप सबके फेस के थ्रू नहीं हो पाता। मैं नहीं टू व्हाट एक्सटेंड मैं अपनी बात कह पा रहा हूं, मैं ये भी नहीं जान पाता। मेरी बात कितनी पहुंचा पा रहा हूं मैं आप तक, ये भी मैं नहीं जानता। इसलिए मैं लास्ट में 5-10 मिनट जनरल डिस्कशन के लिए दूंगा और बीच में आपसे उम्मीद करूंगा कि यदि बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो आप अपना ऑडियो ऑन करें और सवाल पूछें। दूसरी इम्प्लीकेशन इसकी ये है जो बहुत सीवियर है। यूजीसी भी ये कहती है, एमएमटीसी भी ये कहती है, आपके डायरेक्टर्स वगैरह भी ये कहते हैं और बाकायदा एथिक्स और टेक्नोलॉजी भी ये कहती है that we should have our audio off and video on. I repeat, your video should be on, audio should be off. क्यों? इतना ही नहीं, पहले कई लोगों ने बाकायदा आप लोगों को ये भी सख्त भाषा में कहा है, आपके कोऑर्डिनेटर इन सब ने, कि यदि आप वीडियो ऑन नहीं रखेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। हालांकि मैं उसके फेवर में नहीं रहता, पर मेरा स्पष्ट कहना है कि आप लोग मैच्योर लोग हैं, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के लोग हैं। आई रिपीट, योर वीडियो शुड बी ऑन एंड ऑडियो शुड बी ऑफ। तो होता ये है, आप में से ज्यादातर लोग बड़े रिलैक्स्ड हो जाते हैं, ऑडियो भी ऑन कर देते, ऑफ कर देते हैं, वीडियो भी ऑफ कर देते हैं और आनंद की मुद्रा में रहते हैं, जो कि ठीक नहीं है। ये आनंद की मुद्रा का क्षण नहीं है, जागरूकता का क्षण है। मैं फिर तीसरी बार कहूंगा, your video should be on. I repeat, video should be on, audio should be off. अभी कुछ देर पहले बिल्कुल शुरुआत में आप में से एक साथी ने अपना वीडियो तो ऑन नहीं किया था लेकिन ऑडियो पुरजोर ऑन रखा था और पति पत्नी की मीठी मीठी लड़ाई में साफ सुन पा रहा था, जो कि फिर अच्छी बात नहीं है। So we should be mature enough to have our video on. मैं बार बार कहूंगा इस बात को, और यदि बहुत ज्यादा दिक्कत हुआ तो छोड़ के चला भी जाऊंगा, क्योंकि मैं इन चीजों के चक्कर में नहीं पड़ा करता। अब मैं इन चीजों से बहुत आगे हट गया हूं। एक और बात, आप लोग कई बार थैंक यू वेरी मच और ये सब जो कई बार ये गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग वाले मैसेज देते हैं, मैं इनको बहुत अप्रिशिएट नहीं कर पाता। लास्ट, आप में से कई लोग जो फूल से भी उड़ाया करते हैं बीच बीच में, वो भी बहुत मैं अच्छी बात नहीं मानता। प्लीज कीप ऑफ ऑल दीज थिंग्स। नाउ आई स्टार्ट। मैं एक बार फिर कह दूं, वीडियो ऑन एंड ऑडियो ऑफ। मैं बार बार 4 बार और कहूंगा बीच में। 4 हिस्सों में मैं अपनी बातचीत करूंगा। पहले कुछ फैक्ट्स में इंडिया के बारे में बताऊंगा, दूसरे हिस्से में इंडियन हेरिटेज, इंडियन नॉलेज हेरिटेज के बारे में बताऊंगा, कुछ स्रोतों के बारे में, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ इंडियन नॉलेज। तीसरे हिस्से में मैं इंडियन नॉलेज सिस्टम में जो पर्टिकुलर फीचर्स हैं, स्पेशल फीचर्स हैं, उनकी बात करूंगा। और चौथे हिस्से में मैं बात करूंगा डिफरेंट सब्जेक्ट वाइज जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है उसकी दृष्टि से हम सब्जेक्ट वाइज देखें तो कैसा होगा। हालांकि ये बात बीच बीच में ओवरलैप भी कई जगह होती रहेंगी। वेल, वी विल सी टू इट। मैं देश के बारे में बात शुरू करूं। दोस्तों, ये सारी दुनिया मानती है, आज हम इस बात को अप्रिशिएट करें या ना करें, सारी दुनिया में इसमें कोई शक नहीं, कई मायनों में भारत दुनिया का अनूठा देश है।
मैं और भी बातें बताऊंगा बहुत सी, पर सबसे पहले मैं इसी से बता दूं। एक जो विशेष अर्थ रखता है, दुनिया का सबसे पुराना जीवित शहर भारत में मौजूद है, और वो अलीगढ़ से आप मेरे लखनऊ की ओर चलें और लखनऊ से थोड़ा आगे जाएं तो वो शहर कहलाता है बनारस। द ओल्डेस्ट लिविंग सिटी ऑफ द वर्ल्ड इज बनारस इन इंडिया। बनारस की बात सतयुग में भी की जाती थी, त्रेता युग में भी की जाती थी, द्वापर युग में भी की जाती थी, और आज कल युग में की ही जा रही है। दूसरा, हिस्ट्री की बात यदि हम करें तो इंडियंस बाय एंड लार्ज आर हिस्ट्री लविंग पीपल। लोग अक्सर कहते हैं कि दुनिया के ज्यादातर देश जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो वेस्टर्न कल्चर है, उस कल्चर में हिस्ट्री को कोई मायने नहीं देते। अब हालांकि थोड़ी सी जागरूकता बढ़ रही है। इंडिया एक ऐसा है जहां आप हर घर में पाएंगे कल्चरल हेरिटेज की चीजें पाई जाती है। मेरे बाबा ऐसा करते थे, मेरे परदादा ने ऐसा किया था, हमारे यहाँ तो पुष्पक विमान था, हमारे यहाँ ये था। वी ऑलवेज टेक resort to history for answering many questions. So basically we are a history oriented society. इतिहास उन्मुखी शहर हैं हम। हमारा बहुत ही प्राचीन और गौरवशाली इतिहास रहा है। It has been a very ancient and glorified, magnificent past रहा है। हमारे यहाँ रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी, इनको जोड़कर देखा जाता है बाय एंड लार्ज। वी आर बाय एंड लार्ज स्पिरिचुअल बाय नेचर। लास्ट के सर्वे में भी इवन 1% नहीं, 0.1% से भी कम हम लोग जो नॉन रिलीजियस पाए गए हैं, एथीस्ट पाए गए हैं। हमारे जो मेंटलिटी है, इंडियन मेंटलिटी, भारतीय मानसिकता, वी आर फेटलिस्टिक बाय नेचर, भाग्यवादी माने जाते हैं। जापान से कोई पत्रकार भारत आए थे 60s 70s में, उन्होंने कहा था कि यहाँ का तो भिखारी भी फिलोसफी झाड़ता है। वी आर फिलोसफिक बाय नेचर, वी आर फेटलिस्टिक बाय नेचर। भिखारी भी कहता है मेरे भाग्य में नहीं था तो नहीं है, भाग्य में होगा तो फिर मिल जाएगा, मेरे कर्म ऐसे थे, आगे ऐसा होगा, अगले जन्म में ऐसा होगा। He talks of fatalism, he talks of religion, he talks of God, he talks of spirituality. We are hospitable by nature. J.B.S. हेल्डेन भारत के, विश्व के एक बहुत प्रसिद्ध विद्वान रहे हैं। भारत में रहे थे वो 4-5 साल हैदराबाद में, इंडियन केमिकल लेबोरेटरी में, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी में। हेल्डेन साहब ने एक ऐसे में लिखा है लैंड एंड पीपल में कि भारत के गांव में आप यदि गर्मी की दोपहरी में आप जा रहे हैं आप कार में, और आपकी कार के रेडिएटर में पानी कम है, तो ना केवल आपके कार के रेडिएटर को पानी मिलेगा, आपको भी पानी मिलेगा, आपको भी खाना मिलेगा, और वो आपसे कहेंगे कि आप आराम करके जाइए, गर्म दिन है, थोड़ा जब ठंडा हो जाए तब जाइए। वी आर टॉलरेंट बाय नेचर। हमारी आइडियोलॉजी में कहा ही जाता है दुख भरे दिन बीते रे भैया, दुख भरे दिन बीत गए, अब ठीक है, बात ये है। वी आर नॉन मेटेरियलिस्ट बाय नेचर। आप कल्पना करें, आप सोचें जरा, आप सबके शहर में कोई ना कोई ऐसा आदमी है जिसके बारे में हम लोग अक्सर, आप लोग बात करते होंगे कि वो जब आया था तो लोटा डोर लेकर आया था, अब बड़ा हो गया, ये हो गया, फला ये हो गया, पहले ऐसा था, कुछ भी नहीं था। हमारे कल्चर के बारे में कहा जाता है कि व्हाट इज इंडियन कल्चर, इट इज एग्रीकल्चर। आज भी देश की 70 से ज्यादा % आबादी कृषि पर आधारित है। हमारा सिविलाइजेशन विश्व का सबसे पुराना सिविलाइजेशन है। हमारे लोग, हमारे पीपल, हमारा प्रोफेशन, हमारी इकोनॉमी के बारे में हमारे यहाँ एक मिक्स्ड इकोनॉमी आज भी है। कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट का मिक्सचर सही है, ओपन एंड क्लोज्ड इकोनॉमी। हमारी अपनी पॉपुलेशन नीड्स हैं, एस्पिरेशंस हैं। दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री आज भारत हो गया है, हमने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। मैं क्लाइमेट वाइज बात करूं, फाइटो जियोग्राफी एंड जियोग्राफी, दोस्तों एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। दुनिया के बहुत कम ऐसे देश हैं
जहां +50 और -50 डिग्री टेम्परेचर एक साथ रहता है। आजकल गर्मियां में 1 महीने में और गर्मियां हो जाएंगी, पीक पर गर्मियां आ जाएंगी, पीक सीजन चल रहा है इस समय। +50-55 डिग्री टेम्परेचर राजस्थान के आसपास पाया जाता है। ठीक इसी तरह लाहौल स्पीति या इससे भी ऊपर -50 डिग्री टेम्परेचर मिलता है। इस खास बात की वजह से इक्वेटोरियल अक्षांश और देशांतर की वजह से हमारी जो टिपिकल पोजीशन है, फाइटोजियोग्राफी एंड जूजियोग्राफी, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की दुनिया की सबसे ज्यादा वैरायटीज भारत में पाई जाती हैं। The highest number of species of plants and animals are found in India. ये हमारी बड़ी खास बात है। यदि हम आधुनिक चिंतकों की बात करें, जिनका सारी दुनिया आज भी लोहा मानती है, आधुनिक चिंतक मैं कर रहा हूं, बाकी बाद में करेंगे। महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, श्री अरबिंदो, विवेकानंद, इकबाल अहमद, एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राधा कृष्णन, इन सब की बात आज भी सारी दुनिया करता है। वैज्ञानिकों की बात करें, सीवी रमन, जगदीश चंद्र बोस, मेघनाथ साहा, एसएन बोस, रामानुज, एपीजे कलाम, they have been termed as the top scientists of the world. एजुकेशन की बात मैं करूं थोड़ी देर के लिए। 1948 में, स्वतंत्रता के बाद ही हम बात करें, उससे पहले डिटेल में ना जाए। हमारे यहाँ डॉक्टर राधा कृष्णन कमीशन 49 में आया, मुदालियर कमीशन 53 में आया, 68 में कोठारी कमीशन रिपोर्ट आई, 75 में ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन आई, 86 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई। उसके बाद 92 में आचार्य राममूर्ति कमेटी रिपोर्ट आई, जिसका कि मैं पूर्ण आदर और विनयशीलता से कहूंगा कि मुझे भी 2 चैप्टर बुलाए गए, मुझे 2 चैप्टर लिखने के लिए। उसके बाद यशपाल कमेटी रिपोर्ट आई, जनार्दन रेड्डी कमेटी रिपोर्ट आई, 2005 का नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आया, 2009 में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन आया, और 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई। दोस्तों, मैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में एक कमेंट करना चाहूंगा। मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है, 1947 के बाद 2 बड़े जो आए हैं, या तो 1968 में कोठारी कमीशन आया, जिसे हमारी बाइबल कहा जाता है, और ये कहा जाता है कि सबसे ज्यादा डिटेल आप 1968 की, उसमें आप कंप्यूटर के बारे में भी चीजें मिलेंगे, कॉलेज यूनिवर्सिटी की कैंटीन के बारे में भी कमेंट मिल जाएंगे। इतना ज्यादा वृहद बड़ा डॉक्यूमेंट भारत के इतिहास में नहीं आया था। इससे भी बड़ा पैराडाइम शिफ्ट 2020 में आया। दोस्तों, मैं आप सबसे अपील करूंगा कि मुश्किल से 100 पेज का डॉक्यूमेंट है, आप इसको पढ़िएगा। इतनी शानदार पॉलिसी भारत के इतिहास में इससे पहले नहीं आई है। इतनी ज्यादा ब्रॉड, इतनी ज्यादा वाइड, इतनी ज्यादा डेप्थ लिए हुए इंडियन पार्लियामेंट में किसी ने इसका विरोध नहीं किया। इसके इम्प्लीमेंटेशन पर आप सवाल उठा सकते हैं, पर इसके कंटेंट, इसके थीम, इसकी आइडियोलॉजी, इसके जो रिपोर्ट के सच आप पाएंगे, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट रिपोर्ट्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन। एक और खास बात मैं कहूंगा, यदि आप अपनी टीचिंग को सुधारना चाहते हैं, अपने टीचरशिप को सुधारना चाहते हैं, अपने सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग को सुधारना चाहते हैं, अपने इंस्टीट्यूशन की अंडरस्टैंडिंग को सुधारना चाहते हैं, अपनी यूनिवर्सिटी और कॉलेज के बारे में आप ज्यादा समझ को सुधारना चाहते हैं, इस डॉक्यूमेंट को पढ़िए। मेरा दावा है, यू विल फील एनरिच्ड बाय रीडिंग दिस डॉक्यूमेंट। मैं एक बार फिर याद दिला दूं, मुश्किल से 7-8 लोग वीडियो ऑन किए हुए हैं। May I request you, all of you, to please keep your video on. वीडियो ऑन रखने का प्रयास करें साहब। अच्छा जी, अब मैं दूसरे हिस्से में आता हूं। दूसरा हिस्सा है जो टिपिकल बेस माना जाता है इंडियन नॉलेज सिस्टम का। उसका हमारी हेरिटेज क्या है, हमारे सोर्सेज ऑफ नॉलेज क्या है, ज्ञान के स्रोत क्या हैं, उनकी हम बात। मैं सबसे पहले प्राचीन भारतीय शिक्षा की बात करूं। लखनऊ विश्वविद्यालय में 2 भाई हुए थे, एक का नाम था राधा कमल मुखर्जी, एक का नाम था राधा कुमुद मुखर्जी। राधा कमल जी बड़े भाई थे, दोनों यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे।
राधा कमल जी बाद में वाइस चांसलर भी बने। राधा कुमुद जी ने एक बहुत मोटी बढ़िया 800-900-1000 पेज की किताब निकाली है, एंशिएंट इंडियन एजुकेशन, प्राचीन भारतीय शिक्षा। हालांकि और बहुत से लोगों ने किताब लिखी है एंशिएंट इंडियन एजुकेशन के बारे में, पर इससे ज्यादा डिटेल, इससे ज्यादा प्रूफ दी हुई, इससे ज्यादा शानदार किताब भारत विश्व के इतिहास में यहाँ की कंट्री की नहीं लिखी गई है। इट इज दी बेस्ट बुक आई वुड से। राधा कुमुद मुखर्जी जी लिखते हैं, और उनके उससे हम केवल वो ले लें कि क्या क्या चीजें हैं। आज आप पाएंगे कि आज भी भारत के अधिकतर विश्वविद्यालय राधा कुमुद मुखर्जी की किताब में दिए हुए एक नियम को अलिखित रूप से, चाहे वो जानते हो ना जानते हो, वो फॉलो कर रहे हैं आंख मीच के। आप पाएंगे, मैं एक ही एग्जांपल दूं, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, बनारस यूनिवर्सिटी हो, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो, लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, बड़ौदा यूनिवर्सिटी हो, हैदराबाद यूनिवर्सिटी हो, चेन्नई यूनिवर्सिटी हो, बॉम्बे यूनिवर्सिटी हो, ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर के रेसिडेंस के ठीक बगल में गेस्ट हाउस होता है। राधा कुमुद मुखर्जी ने अपनी किताब में लिखा हुआ है, बाकायदा मैप दिया और मैप पे पोजीशन बताइए कि कहाँ क्या है। उसमें बताया गया कि जो वाइस चांसलर का कुलपति निवास के ठीक एक और अतिथिशाला रहती थी, गेस्ट हाउस, और दूसरी ओर रुग्णालय रहता था। रुग्णालय मतलब हॉस्पिटल। और उससे आगे फिर स्टूडेंट्स के निवास होते थे, उनके निवास के बीच में एक टीचर, फिर स्टूडेंट के निवास, उनके निवास के बीच में एक टीचर, स्टूडेंट के आवास, उनके आवास के बीच में एक टीचर। टीचर्स का अलग वो नहीं रहता था, सारे मकान एक जैसे नहीं रहते थे। टीचर्स के मकान स्टूडेंट्स के मकानों के बीच में रहते थे। एक और खास बात यहां से हम देखें, 4-5 खास बातें जो मैं बताना चाहूंगा एंशिएंट गुरुकुल सिस्टम के बारे में, जो आज भी दुनिया लोहा मानती है। हमारे भारत में एक समय पर 5 महाआचार्य माने जाते थे और उनके गुरुकुल को महागुरुकुल कहा जाता था। महाआचार्य की एक परिभाषा है, बड़ी टिपिकल परिभाषा है। आज दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी मानी जाती है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी मानी जाती है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी मानी जाती है, मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी मानी जाती है, और एक आईवी लीग है अमेरिका में, 7 यूनिवर्सिटीज की लीग, वो मानी जाती है। दोस्तों आप हैरान होंगे, इनमें से एक भी विश्वविद्यालय एक महाआचार्य या महागुरुकुल की बराबरी न कर पाता और शायद ना कर पाएगा। कैसे? ये 5 महाआचार्य उन्हें कहा जाता था जिनके गुरुकुल में 10,000 छात्रों को 12 साल तक रहने, खाने और पढ़ाने की सुविधाएं मौजूद रहती थी। They had the provision for boarding, lodging and education of 10,000 students for 12 years at a stretch. अब मैं इसी बात को कहना चाहता हूं, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, मैसाचुसेट्स, इन सब में इतनी ताकत नहीं है कि 10,000 छात्रों को 12 साल तक रह सकें, खिला सकें, रख सकें, खिला सकें और पढ़ा सकें। We had 5 such महागुरुकुल्स, महाआचार्यास। एक और खास बात, ये महाआचार्य साल में एक बार महीने भर के लिए मिलते थे और उस दौरान ये चिंतन मनन करते थे सुबह से रात तक, और सारी दुनिया का कोई भी आदमी कभी भी इनसे आकर मिल सकता था, बात कर सकता था, सवाल उठा सकता था। It was an absolute international open forum for discussion on political matters, social matters, cultural matters, ethical matters, दुनिया की हर प्रकार की समस्याओं के बारे में, चाहे वो कृषि के बारे में हो, समाज के बारे में हो, नीति के बारे में हो, नैतिकता के बारे में, राजा के बारे में हो, समाज के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में हो, किसी के भी बारे में कोई भी कुछ भी सवाल पूछ सकता था, बात कर सकता था, और ये सब इन्हीं स्थितियों के बारे में मिलकर बैठते थे, चिंतन मनन करते थे। आज भी दुनिया में ये चीज नहीं हो पा रही है। अब मेरा पर्सनल ऐसा सोचना है
कि आज भी ये संभव नहीं है कि देश की 50 यूनिवर्सिटीज के 50 वाइस चांसलर ही मिलकर बैठे और देश और समाज के हर तरह के बारे में चिंतन कर पाए। वो अपनी यूनिवर्सिटीज के बारे में चिंतन नहीं कर पाते, देश और समाज की तो बात की बात है। क्या एक और खास बात दोस्तों, हम लोगों को ये भ्रांति है कि गुरुकुल सिस्टम वाज मियरली ए प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम, एट बेस्ट एलिमेंट्री एजुकेशन मान लेते हैं। नो, इट इज रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। गुरुकुल सिस्टम वाज एन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ एजुकेशन, जहां प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, टर्शियरी एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, इन सबको मिलाया था, इन सबको इंटीग्रेट कर रखा था। इट वाज ऑल इन वन। सभी प्रकार की शिक्षाओं को एकीकृत रूप से देने का तौर तरीका गुरुकुल सिस्टम था। और इसका प्रूफ ये है, दुनिया में आज भी एक भी यूनिवर्सिटी इस मुद्दे का मुकाबला नहीं कर पाती है। इन यूनिवर्सिटीज में अब हमारे पास पूरे एविडेंसेस हैं, मिनिमम 18 विषय और मैक्सिमम 25 विषय पहले दिन से पढ़ाए जाते थे। There were minimum 18 subjects and maximum 25 subjects which were being taught in these universities. वेद, वेदांग, उपवेद, कल्प, छंद, निरुक्त, व्याकरण, मृग विद्या, सर्प विद्या, चर्म विद्या, विधि शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र और पता नहीं क्या क्या पढ़ाया जाता था इन सब विश्वविद्यालयों में। ये फिर प्रूफ करता है कि they were institutions of complete integrated education। एक और खास बात, हम लोगों के भ्रम में बताया गया, ज्यादातर किताब में लिखा रहता है कि ये 12 साल का गुरुकुल सिस्टम था। नो, अगेन इट इज रॉन्ग। आप गूगल में पढ़िए, उत्तर मिल जाएगा। मोस्ट ऑफ द गुरुकुल्स 12 साल की शिक्षा देते थे, लेकिन कुछ गुरुकुल ऐसे थे जो 24 साल की शिक्षा देते थे, कुछ गुरुकुल ऐसे थे जो 36 साल की शिक्षा देते थे, और तो और कुछ गुरुकुल ऐसे थे जो 48 साल की शिक्षा देने का प्रावधान था। और आगे बढ़िए, देयर वर सर्टेन पीपल जो कहते थे कि हम सारी उम्र पढ़ेंगे, हम सारी उम्र गुरुकुलों में अध्ययन करेंगे। थोड़ा बहुत पढ़ना पढ़ाना है। परिव्राजक, श्रमण, ये संस्कृत के बुद्ध काल के जरूर शब्द है, लेकिन उस समय भी पाया जाता था। गुरु इस पे राधा कुंद मुखर्जी की किताब में बड़ा साफ लिखा है कि बहुत से स्कॉलर्स, अनेकों स्कॉलर्स सारी लाइफ, जीवन पर्यंत पढ़ते ही रहते थे। दे वर स्कॉलर्स थ्रू आउट द टाइम। एक समय पर यूजीसी की इसकी स्ट्रीम थी, डॉक्टरल स्कॉलर, पोस्ट डॉक्टरल स्कॉलर और रिसर्च एसोसिएट और इस तरह की अनेक पद की अब वो स्कीम थोड़ी कम कर दी गई है, लेकिन हमारे यहाँ प्रोविजन रहा है गुरुकुल्स में। एक और अरण्यक संस्कृति कहा जाता है इन गुरुकुलों में, गांव और शहरों से दूर थे और यहाँ शिक्षाटन, शिक्षा के लिए दूर दूर तक दूसरे गुरुकुलों में जाकर 6-6 महीने ठहरते थे लोग। पीपल टीचर रिलेशनशिप वर्ल्ड की बेस्ट मानी गई है। मैं एक फिर मुझे याद आता है, यूएनओ ने 1986 में ब्रिटलैंड कमेटी एक बनाई थी एजुकेशन के बारे में। ब्रिटलैंड कमेटी में वर्बेटम ऋग्वेद से और वेदों से कोट किया गया है कि दुनिया की शिक्षा होनी चाहिए तो ऐसी होनी चाहिए। अब हम उनके लोगों की बात करें, उस समय के और स्रोतों की बात करें, जो एक बहुत कॉमन स्रोत, आई रिपीट, मुश्किल से 4 लोग वीडियो ऑन है। आई रिपीट, प्लीज कीप योर वीडियो ऑन फ्रेंड्स। मे आई रिक्वेस्ट यू, ऑल ऑफ यू, टू प्लीज कीप योर वीडियो ऑन। आप लोग बच्चे नहीं है, 6ठी 7वीं 8वीं के लोग नहीं है, यू आर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी टीचर्स। और यूपी में तो हमारे यहाँ प्रोफेसरशिप भी आ गई है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, बुद्धिजीवी हैं, चिंतक हैं आप लोग। सारा देश आप लोगों की ओर देखता है और आप पर सारे देश और दुनिया के लिए अनेकों सॉल्यूशंस होने चाहिए। इसलिए मेरी आपसे ये अपेक्षा गलत नहीं है कि आप सब अपना वीडियो ऑन रखें और ऑडियो ऑन रखें, ऑफ रखें। बहुत कॉमन हम लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ एक आदमी हुआ है चाणक्य। चाणक्य के 3 नाम थे, हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि ये 3 अलग अलग लोग थे, लेकिन अब ये सिद्ध हो चुका है कि ये तीनों एक नाम थे, हिस्टोरियंस बताते हैं। कौटिल्य, जिनके नाम से किताब छपी है अर्थशास्त्र, दूसरा नाम जैसा कि मैंने बताया चाणक्य, और तीसरा नाम विष्णुगुप्त। तो विष्णुगुप्त
कौटिल्य और चाणक्य जिसने अर्थशास्त्र लिखा था, उसमें मोटे तौर पर 4 प्रकार की बात की गई है। अन्वीक्षा, त्रयी, व्रत और दंड नीति। अन्वीक्षा में कंप्लीट साइंस, कंटेम्परेरी साइंस, लॉजिक और फिलॉसफी की बात की जाती है। त्रयी में वेदों की बात की गई है। वृत्ति में एग्रीकल्चर और कॉमर्स की बात की गई है। और दंड नीति में पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात की गई है। समाज, देश कैसे चलाया जाए, क्या उसके तौर तरीके होने चाहिए, क्या मनुष्य को मिनिमम जानना चाहिए, क्या जरूरी है, ये सब बातें इसमें की जाती हैं। अब मैं भारत की प्रमुख विद्याओं के बारे में, द एरियाज ऑफ नॉलेज की बात करूंगा। कुछ लोग ये मानते हैं कि भारत में 14 विद्याएं थी। कुछ लोग कहते हैं जी 14 नहीं, 18 विद्याएं थी। तो चतुर्दश विद्या और अष्टदश विद्या, ये 2 शब्द। फूल कुमार मलिक जी हाथ खड़ा कर रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं सर? फूल कुमार मलिक जी। नो सर, बाई चांस से गलती से लग गया। ओके फाइन, एब्सोल्युटली ओके, नो इशू। 14 विद्याएं, चतुर्दश विद्याओं की बात करें हम, उसके बाद 4 विद्याओं की और बात करेंगे। सबसे पहले, सबसे प्रमुख, सबसे प्राचीन और सबसे अलग तरह का विद्या हमारी 4 वेद कहे गए हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे मुनीस, उनके वहां से जो पढ़ के मुनीस रजा साहब दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, और इनके बड़े भाई थे राही मासूम रजा, जिन्होंने महाभारत लिखी है। वो कहा करते हैं कि वेदों के बारे में कहते हैं कि जो यहां नहीं है वो कहीं नहीं है, और जो कहीं नहीं है वो यहां है। वेद कहता है कि दुनिया के सबसे पुराने, ओल्डेस्ट लिविंग डॉक्यूमेंट ऑफ द वर्ल्ड आर वेदास। हम इनकी बात बाद में करेंगे और डिटेल में। वेद 4 माने गए हैं। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, यजुर्वेद उसके बाद का वेद है, सामवेद उसके बाद का वेद है, और अथर्ववेद अंतिम वेद है। चलिए हम 2 मिनट 4 मिनट ऐसी यही बात कर लेते हैं। वैसे तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद में देवताओं की पूजाओं की बात की गई है, भक्ति की बात की गई है। ऋग्वेद और यजुर्वेद में ऋचाएं हैं, और हर वेद के 4 हिस्से माने गए हैं: अरण्यक, संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद। इन चारों में 4-4 हिस्से पाए जाएंगे: अरण्यक, ब्राह्मण, संहिता और उपनिषद। ऋग्वेद में ऋचाओं के रूप में दोहे, यानी दोहा कहें, कपलेट्स, ऋचाओं के रूप में कहा गया है, श्लोकों के रूप में कहा गया है ऋग्वेद यजुर्वेद में। सामवेद में भी ऋचाएं हैं, लेकिन वो गाई जाती हैं। सामवेद इज संग, ये गाया जाता है। और अंतिम वेद अथर्ववेद के बारे में 3-4 बातें जो प्रमुख हैं। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ, उस समय अथर्ववेद की रचना की जा चुकी थी। अथर्ववेद के जो चीफ एडिटर थे वो अथर्व ऋषि माने गए हैं। और इतना ही नहीं, मैं कल ही पढ़ रहा था, अब तो मुझे एक भी याद नहीं है, 20 दर्जनों महिलाओं के नाम है जिन्होंने वेदों की रचना की। क्या पहचान महान भारत में सिर्फ ब्राह्मणों के साथ बैठकर शूद्रों के। सर मैं माफी चीजिए, ऐसे ऊटपटांग सवालों का जवाब नहीं दे पाऊंगा। मैं माफ जानकर ऊटपटांग कह रहा हूं, ये विघ्न डालने वाली बात है। ये मैं अभी बताऊंगा, इसको अभी बाद में कमेंट करूंगा मैं, बट दिस कमेंट इज अनआस्क्ड फॉर, ओके, क्योंकि ये विभेदन की बात है। इट इज नॉट ए हैप्पी साइन ऑफ द, बिना पढ़े हम ऊटपटांग कुछ भी कमेंट करें, ये गलत होगा। पहले पढ़ना चाहिए, गुनना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। अध्ययन, मनन और चिंतन के बिना ऊटपटांग कमेंट, I'll not go for that. It is absolutely wrong. खैर,
एक और अथर्व ऋषि की बात की जाती है, मतलब कहा गया है कि दर्जनों महिलाओं ने वेदों की रचना करने में सहयोग दिया है। देयर आर डजन्स ऑफ पीपल, गर्ल, वुमेन हु हैव रिटन इन द हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ वेदास। एक और खास बात ये माना गया है, जो पहले 3 वेद है वो भक्ति या चिंतन या देवों की पूजा के बारे में है। चौथा वेद के बारे में ये माना गया है कि आप बच्चे की शादी कैसे करें, जन्म संस्कार कैसे करें, चोर आ जाए तो क्या करें, सांप आ जाए तो कैसे मारें या भगाएं। हर जीवन के हर पहलू पर अथर्ववेद में बात की गई है। ये सबसे बड़ी खास बात है अथर्ववेद की। अथर्ववेद बड़ा प्रैक्टिकल और डाउन टू अर्थ जीवन के विभिन्न चिंतनों के बारे में बात। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये तो 4 विद्या तो ये हो गई, 4 वेद। अब हम बात करें, वेदांग 6 माने गए हैं। तो 4 विद्या वेदों की हो गई, 6 विद्या वेदांगों की हो गई। 6 वेदांग कौन कौन से हैं, हम उनके नाम जाने। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त और ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष, ये 6 एक उसमें याद किए जाते हैं। 6 विद्याएं अलग मानी गई है। तो 4 और 6 10 विद्या हो गई। ये 10 विद्या कौन कौन सी है हम देखें। शिक्षा तो आप जानते हैं, द साइंस ऑफ टीचिंग एंड पेडागोजी। क्या शिक्षा ले, कौन सा पात्र है, अध्यापक कौन है जो इस लायक है जो शिक्षा दे सके, छात्र कौन है जो शिक्षा ले सके, इन पर बात की जाती है। कल्प, कल्प 3 माने गए हैं, सामान्य कल्प, गृहस्थ कल्प, धर्म कल्प। गृहस्थ कल्प, धर्म कल्प और सल्व कल्प, 3 कल्प माने गए हैं। व्याकरण, द रूल्स ऑफ ग्रामर। आज भी भारत में कुछ लोग ट्रेडिशनल तरीके से कविताएं लिखते हैं, इतने इसमें दीर्घ मात्राएं होनी चाहिए, इतने शब्द होना चाहिए। ये जो नियम है व्याकरण के, यही कारण है कि संस्कृत भाषा को नासा ने आज भी अपने यहाँ लिखने के लिए, कोड लिखने के लिए संस्कृत भाषा को प्रयोग किया जाता है। क्योंकि संस्कृत भाषा में विद्वानों ने मुझे बताया है कि काफी सीमा तक संस्कृत ऐसी भाषा है जिसके एक शब्द को आगे पीछे कहीं भी रख लो मीनिंग नहीं बदलता है। इट इज वन ऑफ द रेयरेस्ट द बेस्ट लैंग्वेज फॉर कोडिंग द कंप्यूटर, जिसमें भाषा ट्विस्ट नहीं होती, अर्थ बदलता नहीं। व्याकरण के बाद छंद, सिंगल सूत्र और छंद सूत्र, पोइट्री यदि मैं कहूं। कोमलजीत कौर जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि अपना ऑडियो ऑफ करें। मैं कहना नहीं चाहूंगा, इन्होंने पहले भी ऑडियो ऑफ नहीं किया था तो दिक्कत हो रही थी, डिस्टर्बेंस होती है, इको होती है आवाज। छंद, पोइट्री, छंद के नियम क्या है, पोइट्री के नियम क्या है, ये छंदों की बात की गई है। निरुक्त, यक्ष ने एटाइमोलॉजी की बात की है, शब्द मीमांसा, शब्दों का विज्ञान क्या कहता है, शब्द, उनका अर्थ, अर्थ और अनर्थ, इन सब की बात की गई है। ज्योतिष, जिसको उर्दू में नजूमी कहते हैं, द साइंस ऑफ एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी की विज्ञान, भविष्य विज्ञान, जिसको ज्योतिष कहा गया है। तो ये हुई 10 विद्याएं, 6 और 4 10। अगली एक विद्या मानी जाती है इतिहास। इतिहास के बारे में ये कहा जाता है इतिहास, इति मीन्स ओवर, हास मीन्स इति, मतलब जो जिसका हास, इति माने यह है, इतिहास, यह हो गया, हास यह खत्म हो गया। अभी जो थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था कोमलजीत जी से कि वो अपना ऑडियो ऑफ करें, अब ये बात हिस्ट्री की हो गई, क्योंकि मैंने इसको पहले कहा, whatever has happened in the past is a matter of history. It may be an immediate past, it may be a remote past. तो इतिहास में 3 स्रोत माने गए हैं, 3 sources of history माने गए हैं। पहला स्रोत रामायण, दूसरा महाभारत और तीसरा पुराण माना गया है। रामायण आप और हम सब जानते हैं। रामायण की एक और बात बता दूं, रामायण के दर्जनों रूप हैं सारी दुनिया में। भारत में ही में रामायण के 3 रूप मिल जाते हैं, कम से कम 3 रूप।
तुलसी की रामायण अलग है, वाल्मीकि की रामायण अलग है, कंबन की रामायण अलग है, श्रीलंका की रामायण अलग है, मलाया, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, इन सब की रामायण अलग अलग तरह से अलग अलग डिपिक्ट करती है, बट द थीम स्टोरी इज द सेम। महाभारत अर्लीस्ट जो माना गया है, लेटेस्ट हमारे यहाँ माना गया है कि महाभारत लेटेस्ट बड़ी घटना रही है हमारे यहाँ, और महाभारत भारत के इतिहास में इससे ज्यादा कहना चाहिए सेना का खात्मा विश्व के इतिहास में इससे ज्यादा बड़ा नहीं हुआ है। पुराण, तीसरा पुराण माने गए हैं, पुराण 18 माने गए हैं, लेकिन उसमें जो बड़े पुराण या मुख्य पुराण माने गए हैं वो है विष्णु पुराण और भागवत पुराण। वैसे तो आपने सुना होगा कि जो व्यक्ति की डेथ पर गरुड़ पुराण पढ़ा जाता है, पर ये 2 पुराण ज्यादा प्रमुख माने गए हैं, विष्णु पुराण एंड भागवत पुराण। आप में से कोई ने ऑडियो, फिर वही कमल जीत ने ही कर रखा है, वो एक्चुअली होते हैं, लोग क्या करते हैं ऑडियो भी ऑफ कर देते हैं, वीडियो भी ऑफ कर देते हैं, अपना गायब दुनियादारी के कामों में लगे रहते हैं। May I request the UGC person from Aligarh to please, AMU to please ask Madam Komaljeet Kaur to please switch off the audio. हेलो, पार्टिसिपेंट ऑडियो ऑफ कर लें आप, और सर ये नहीं सुन रही है 5 मिनट से, आप इनको फोन करें और कहें कि ये तमीज में नहीं आएगा। इससे पहले भी इनकी पति पत्नी की लड़ाई आ रही थी, सुनाई दे रही थी। That's absolutely unacceptable. खैर, 11 हुए, 4 वेद, 6 वेदांग और 1 हुआ इतिहास। 11, 12वां है धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र में आचार, विचार, प्रायश्चित और दंड की बात की जाती है। धर्म विचार में मनुस्मृति आता है, याज्ञवल्क्य स्मृति आती है और पाराशर स्मृति आती है, और ठीक इसी तरह से कात्यायन की एबिलिटी ग्रुपिंग्स आती है। धर्मशास्त्र का मतलब होता है कि धारयते इति धर्म ने, किस प्रकार से समाज को आचरण करना चाहिए, आचार विचार कैसे करना चाहिए, प्रायश्चित कैसे दिया जाए, दंड कैसे दिया जाए। तो मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पाराशर स्मृति, कात्यायन एबिल स्मृति, इसी में आता है धर्मशास्त्र में बाण भट्ट की 64 कलाओं का भी वर्णन आता है। यहां मैं 2 चीजें बताना चाहूंगा। पाराशर स्मृति में जो काम कोपरनिकस और गैलीलियो ने किया है, पाराशर स्मृति में मेटलर्जी पर खूब डिटेल मिलता है। बाण भट्ट की 64 कलाओं में केमिस्ट्री, फिजिक्स, इनकी डिटेल्स मिलती हैं, फाइनल डिटेल्स मिलती हैं। और इस प्रकार कात्यायन का मैं बताऊंगा, फिर दुनिया का पहला ऐसा ग्रंथ है, आज भी सारे देश में नहीं सारी दुनिया में ऐसी कक्षाएं आपने सुना होगा, ABC रखते हैं, A में सबसे होशियार बच्चे रखते हैं, B में कम होशियार बच्चे रखते हैं, C में सबसे कमजोर बच्चे रखते हैं, और C में बेस्ट टीचर रखते हैं, और टाइम भी ज्यादा दिया जाता है, और C वाले बच्चों को खूब पढ़ाया जाता है ताकि औरों से कम्पीट करके हमारा अच्छा रिजल्ट ले आए। वो एबिलिटी ग्रुपिंग्स कात्यायन ने सबसे पहले की थी। अगला जो विद्या मानी जाती है वो है दर्शन। दर्शन में मैं फिर बात करूं, 6 ऑर्थोडॉक्स दर्शन माने गए हैं और 6 हेटेरोडॉक्स दर्शन सिस्टम्स माने गए हैं। हेटेरोडॉक्स की बात मैं बाद में करूंगा, पहले मैं ऑर्थोडॉक्स फिलोसफीज की बात कर लूं। जो पारंपरिक दर्शन माने गए हैं भारत के 6 माने गए हैं, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। मैं पहले सांख्य की बात करूं, कपिल मुनि जी ने दिया था, और सांख्य में 24 + 1 25 तत्वों की बात की गई है। पुरुष, प्रकृति, महत, अहंकार और पंच, वो कहा जाता है मन, 5 महाभूत, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय और तन्मात्रा। 5 तन्मात्रा, 5 पंच महाभूत, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 1 मन, 21, और इस तरह से टोटल 25 की संख्या की जाती है। इसमें यह माना गया है कि प्रकृति कैसे आई, प्रलय कैसे आया, कैसे दुनिया इवॉल्व हुई,
इसकी बात 3 गुणों की बात की जाती है। ये पहला दर्शन था जिसने बात की सतगुण, तम गुण, रजगुण की बात इस दर्शन ने की है। सांख्य के साथ जुड़ा हुआ, सांख्य को यदि हम मेटाफिजिक्स मान ले थोड़ी देर के लिए, तो जो एथिक्स वाला पार्ट है वो योग दर्शन माना गया है। योग दर्शन में जो सारी दुनिया में आज 24 जून को शायद या 21-22 जून को मनाया जाता है, उसका जो योग में केवल योग मुद्राओं को ही माना गया है, लेकिन असली योग जो माना गया है वो अष्टांग योग माना गया है। 8 अंगों से योग मिलकर बनता है। 8 अंग में आप धारणा, धर्म, धारणा, ध्यान, समाधि, मैं इस समय बाई चांस से समय याद नहीं आ रहा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम संयम की कहा जाता है, सर्दी, गर्मी, वर्षा, इन सब का। नियम 5 माने गए हैं, यम, नियम, आसन, आसन फिर वो कहेंगे कि 84 आसन माने गए हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, इसमें 10 तरह के हैं। प्रत्याहार, प्रति आहार, अब तक हम बाहर से आहार ले रहे थे, अब अंदर से आहार लेना है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये योग के 8 अंग अष्टांगी योग कहलाता है। योग के बाद सांख्य योग, न्याय हमारा एक अलग शास्त्र भी माना गया है, अलग विद्या भी माना गया है, लेकिन षड दर्शन में भी आता है। न्याय में द साइंस ऑफ लॉजिक, ये एक बड़ा डिटेल हुआ, मैं उस पर भी बात नहीं करूंगा, लेकिन केवल इतना बात कहूंगा कि जो अरिस्टोटल लॉजिक है वो 3 टर्म्स का था। इंडियन लॉजिक 5 टर्म्स का माना जाता है। और लॉजिक में, न्याय में हमारे यहाँ प्रत्यक्ष, प्रमाण, उपमान, प्रत्यभिज्ञा, इस तरह के वितंडा, बल्कि डायलॉग के भी हमारे यहाँ 4 प्रकार माने गए हैं। वाद, विवाद, जल्प, वितंडा, इस तरह के अनेक प्रकार के, तो इस तरह से तो माना गया कि सत्य ज्ञान को, जो ज्ञान सत्य ज्ञान नहीं है, उससे कैसे अलग करें, सत्य को असत्य से अलग करने की विधा का नाम न्याय शास्त्र माना गया है। इसमें हमारे यहाँ प्रमा, अप्रमा, प्रमा माने ज्ञान, अप्रमा जो ज्ञान नहीं मानते, जिसे हम ट्रैश कहते हैं, जिसको ज्ञान नहीं माना जाएगा, दैट इज नॉन एज अप्रमा। तो ज्ञान, अप्रमा और अप्रमा के भेद करने की जो विज्ञान है वो न्याय शास्त्र है। सांख्य योग, न्याय, वैशेषिक। वैशेषिक में फिर हम बात करते हैं दुनिया में वस्तुओं का इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे चीजें बनी, कैसे चीजें, ये भी एक सांख्य के पैरेलल जैसा ही है। द्रव्य, कर्म, सामान्य गुण, कर्म, सामान्य विशेष, समवाय, अभाव, इसकी बात की गई है। मैं और डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं केवल एक बात कहूंगा, जैसे सबसे सुंदर इसमें वो माना जाता है, मुझे ऐसा लगता है, जो समवाय का है कि किस तरह से विभिन्न चीजों का संयोजन किया गया है, कौन सी चीज किस तरह से कैसे मिले, इस तरह से वैशेषिक दर्शन की बात की गई है। ठीक इसी तरह से 2 दर्शन और हैं। ये 2 दर्शन एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। पहले इनको कहा जाता था एक है, लेकिन बाद में कालांतर में 2 बने। पहले को कहा जाता है, पहले के भी 3 नाम है, पूर्व मीमांसा, मीमांसा और कर्मकांड, ये 3 माने गए हैं। इससे पूर्व मीमांसा या मीमांसा या कर्मकांड बिल्कुल वही है जो मेरी आपकी दादी, नानी, चाची अक्सर कहती है कि कर्म ऐसे करोगे तो फल ऐसा मिलेगा, ये कर्म करोगे तो ये फल मिलेगा। ईश्वर, भाग्य, कर्म की बात पूर्व मीमांसा में कही गई है। उत्तर मीमांसा के भी 3 नाम है, उत्तर मीमांसा, वेदांत और उपनिषद। उत्तर मीमांसा, वेदांत और उपनिषद। उप, निकट, निषद, बैठना, निकट बैठना, गुरु के निकट जो बैठ के सीखा जाए। उपनिषद 108 माने गए हैं। कुछ उपनिषद मैंने जो पढ़ के देखे वो 1-1 पेज के हैं, कुछ उपनिषद 2 पेज के ही हैं, कुछ उपनिषद 4 पेज के ही हैं, अलग अलग उपनिषद। लेकिन कुछ लोग इसमें मानते हैं कि कुछ उपनिषद, प्रमुख उपनिषद, कुछ लोग 18 मानते हैं, कुछ लोग 12 मानते हैं, कुछ लोग 10 मानते हैं। जो भारतीय ज्ञानपीठ है, भारतीय ज्ञान, उन्होंने बम्बई वालों ने 8 उपनिषद की किताब लिखी, 8 उपनिषद,
उसमें आपने नाम आप जानते होंगे, बृहदारण्यक उपनिषद, ईशोपनिषद, ईश्वास्य उपनिषद, कठोपनिषद, केनोपनिषद वगैरह, ये प्रमुख उपनिषद है। कठ, केन, मुंडक, छंदोग्य वगैरह ये उपनिषदों है। उपनिषदों में ये भी कहा जाता है कि ये उपनिषद अपने आप में कुछ नहीं है, ये केवल वेदों का सार है। वेदों में जो उपनिषद पार्ट है उसका मंथन करके और जो उसको निचोड़ बनाकर जो निकाला गया है वो उपनिषद रूप में निकाला गया है। उपनिषदों में ब्रह्म के बारे में चिंतन किया गया है। ब्रह्म है, ईश्वर है, माया है, मोह, माया, ममता, और विशेष रूप से ब्रह्म और माया की बात की गई है। ये हो गए दर्शन। एक जैसा कि मैंने बताया था, ये विद्या बनी 13, 4 वेद, 6 वेदांग, 1 इतिहास 11, धर्मशास्त्र 12, दर्शन 13 और न्याय शास्त्र 14वां विद्या मानी गई। न्याय शास्त्र में लॉजिक एंड एपिस्टेमोलॉजी, तर्क शास्त्र और ज्ञान, शब्द विज्ञान या भाषा विज्ञान कहा जाएगा। ज्ञान मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी ज्ञान मीमांसा, ज्ञान मीमांसा की बात की गई है कि ज्ञान क्या है, ज्ञान क्या नहीं है, इसकी बात फिर न्याय शास्त्र में की गई है। ये हुए 14 विद्याएं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भाई नहीं, 4 विद्याएं और हैं जिनको उपवेद कहा गया है, उनके नाम भी हम जान लें। 4 उपवेद माने गए हैं, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और स्थापत्य वेद। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और स्थापत्य वेद, 4। ये आयुर्वेद आप जानते हैं, द साइंस ऑफ मेडिसिन फ्रॉम द प्लांट्स। धनुर्वेद, द साइंस ऑफ आर्चरी, द साइंस एंड आर्ट ऑफ आर्चरी। गंधर्व विद्या, द साइंस ऑफ डांसिंग। स्थापत्य विद्या, द साइंस ऑफ आर्किटेक्चर। कुछ मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बताना चाहूंगा जो इंडियन नॉलेज सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बड़ी टिपिकल है। और यहाँ वो बात आएगी जो अपने बलविंदर जी ने या किसने जो सवाल उठाया था उसकी मैं बात करूंगा। हमारे यहाँ टाइम को साइक्लिक माना गया है। मैं इस बात पर फिर रिमाइंड करा दूं कि मुश्किल से 7 लोग वीडियो ऑन है। मे आई रिक्वेस्ट यू, ऑल ऑफ यू, टू प्लीज कीप योर वीडियो ऑन फ्रेंड्स। दोस्तों वीडियो ऑन कीजिए। मैं नहीं चाहता कि बेईमान शब्द का प्रयोग किया जाए या अनीति शब्द का उपयोग किया जाए या नैतिकता शब्द का उपयोग मैं नहीं चाहूंगा। दोस्तों हमारे यहाँ टाइम को साइक्लिक माना गया है। स्टीफन हॉकिंग एक व्यक्ति हुआ है, ये माना जाता है कि नोबेल प्राइज उनके आगे छोटा है। स्टीफन हॉकिंग की पहली किताब थी ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम और अंतिम किताब है द ग्रैंड डिजाइन। मैंने दोनों किताबों का अध्ययन किया है। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में वो सवाल उठाते हैं, वाज देयर टाइम बिफोर टाइम? क्या समय से पहले समय था? यदि समय से पहले, समय कब बना, समय कब शुरू हुआ? आज 2024 है, आज 9 मई है, कल 8 था, इससे पहले 1 मई था, इससे पहले 2023 था, 2020 था, 2000 था, 820 था, 000 था, इससे पहले BC था, BC से भी पहले क्या था, कब समय चालू हुआ? कहते हैं कि जिस समय से पहले समय था तो इसका मतलब समय और पहले चालू हुआ, तो उससे पहले क्या था? व्हाट वाज एट द बिगिनिंग ऑफ द टाइम? वो उत्तर नहीं दे पाए। भारतीय दर्शन उसका उत्तर देता है, हिरण्यगर्भ की कल्पना की गई है हमारे यहाँ। हिरण्यगर्भ एक, कहते हैं कि बहुत सुंदर, चमकीला, सोने जैसा तेज आग का गोला था, जिसको कालांतर में बिग बैंग थ्योरी के अनुसार जोड़ा गया और जिसमें कालांतर में जो भारतीय दर्शन का इवोल्यूशन की थ्योरी है उससे जोड़ा गया है। तो समय हमारे यहाँ मानते हैं कि समय लौटकर फिर आएगा। सारे नॉर्थ इंडिया में आपने पोस्टर अक्सर लिखे देखे होंगे, सतयुग आएगा। तो हमारे यहाँ साइक्लिक माना गया है। समय सतयुग आया, सतयुग के बाद त्रेता युग आया, त्रेता युग के बाद द्वापर युग आया, द्वापर युग के बाद कलयुग आया और वापस समय आएगा, वापस आएगा। So the time will come again, Satyug will come again, and this way the time will move in a cyclic manner. ये माना गया। हमारे यहाँ 4 वर्ण माने गए हैं।
4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। यहां मैं सवाल बड़ा साफ कह दूं, जो मेरा व्याख्या है वो राधा कुमुद मुखर्जी की किताब पर आधारित है, और जो कुछ मैं बता रहा हूं आप राधा कुमुद मुखर्जी की किताब में पढ़ सकते हैं, मेरा नहीं है। इसलिए मैं जो तात्कालिक और राजनीतिक विवेचनाएं की जाती हैं उसकी बात नहीं करूंगा। ब्राह्मण के 6 कार्य माने गए हैं। ब्राह्मण वो है जो ज्ञान ले, ज्ञान दे, दान ले, दान दे, यज्ञ करे और यज्ञ कराए। 6 कार्य ब्राह्मण के माने गए हैं। ज्ञान लेना, ज्ञान देना, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना। उस लिहाज से सारे भारत में चाहे बैंकिंग की ट्रेनिंग देने वाले हैं, या काउंसलर्स हैं, या बीएसएनएल की ट्रेनिंग देने वाले लोग हैं, या प्राइमरी टीचर, सेकेंडरी टीचर, यूनिवर्सिटी टीचर, कॉलेज टीचर, ट्रेनिंग टीचर, वोकेशनल टीचर, मेडिकल टीचर, सभी को ब्राह्मण माना जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, राधा कुमुद मुखर्जी कह रहे हैं। क्षत्रिय उसे माना जाएगा जो देश और समाज की रक्षा करने में इन्वॉल्व रहे। उस लिहाज से बात की जाए तो जो हमारी थल सेना, वायु सेना, जल सेना, पुलिस फोर्स, आर्मी फोर्स, या जो और माना जाए होम गार्ड, सीआरपीएफ, इंडस्ट्रियल फोर्स, सारी फोर्सेस, इतना ही नहीं, हमारी सोसाइटीज, होम सोसाइटी के जो चौकीदार हैं वो सब क्षत्रिय माने जाएंगे। वैश्य जो वस्तुओं के उत्पादन और विनिमय को डील करे, द प्रोडक्शन ऑफ द थिंग्स, द प्रोडक्शन ऑफ द मटेरियल थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द यूज ऑफ द सोसाइटी, और उसका विनिमय, उसका व्यापार करना, उसको ले जाना, व्यापार करना, लाना, ले जाना, ट्रांसपोर्टेशन। तो इस लिहाज से जितनी भी दुनिया के कॉरपोरेट्स हैं, जितने भी किसान हैं, जितना भी इंडस्ट्रीज हैं, उन सबको व्यापारी माना जाएगा, वैश्य माने जाएंगे। और शूद्र वो माने जाएंगे जो राधा कुमुद मुखर्जी कह रहे हैं। जरा सुन लीजिए बड़ा साफ, बलविंदर जी, बड़ा साफ जो राधा कुमुद मुखर्जी कहते हैं, अन्य सभी कार्यों के लिए शूद्र कहलाएंगे। अब यही बड़े टिपिकल वो कहते हैं कि यदि 12 साल की शिक्षा करने के बाद व्यक्ति चिकित्सा को एक प्रोफेशन के तौर पर लेता है, चिकित्सा को एक व्यवसाय के तौर पर लेता है, तो वो शूद्र कहलाएगा। लेकिन यदि वो चिकित्सा को पढ़ाने के काम में लेता है तो वो ब्राह्मण कहलाएगा। और ये इंटरचेंजेबल थी, व्यक्ति जन्म आधारित नहीं, कर्म आधारित थी। इसलिए वो व्यक्ति तय करता था कि मैं शूद्र बनूंगा या मैं ब्राह्मण बनूंगा। यदि उसी चीज को जो उसने सीखा है उसको पढ़ाएगा तब तो ब्राह्मण कहलाएगा, पर यदि उसी चीज से आजीविका कमाएगा या औरों का अपना जीवन भर का उसे काम करेगा, आजीविका कमाना चाहेगा, तो वो शूद्र कहलाएगा। एम्स हमारे यहाँ 4 माने गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म 4 माने गए हैं फिर, शाश्वत धर्म, युग धर्म, जाति धर्म और स्वधर्म। जाति का अर्थ यहाँ वो नहीं है जो हम और आप लगा रहे हैं। शाश्वत, वो परमानेंट, जो शाश्वत धर्म माना गया है। धारयते इति धर्म है, जो भी धारण किया जाए वो मेरा धर्म है। मन, वचन, कर्म, विचार, सोच, चिंतन, मानसिकता, दृष्टिकोण, जो भी मैं धारण करता हूं वो मेरा धर्म है। वो धर्म जो कभी नाश नहीं होता वो शाश्वत धर्म है। समय के साथ साथ जो धर्म बदलता है वो युग धर्म है। जाति धर्म, जो प्रोफेशन में ले रहा हूं, या प्रोफेशन से मतलब जो प्रोफेशन, जैसे बैंक में शाम को 7 बजे तक 10 पैसे का हिसाब नहीं मिला तो रुके रहते हैं लोग, वो उसका जाति धर्म कहलाएगा। और स्वधर्म, इसके बाद जो मेरे अपने पर्सनल वैल्यूज हैं वो मेरा स्वधर्म कहलाएंगे। अर्थ, हमारे यहाँ रुपया, पैसा, धन, दौलत, मेटीरियल वेलफेयर, वो सब अर्थ का मैं धर्म का अनुसार उपयोग करूं अपने लिए, समाज के लिए। काम, अपनी 11 इंद्रियों की भोजन की पूर्ति के लिए धर्म के अनुसार आचरण करना काम अर्थ माना गया है। 11 इंद्रियां मानी गई हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय आप जानते ही हैं, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा।
कर्मेंद्रिय 5 मानी गई हैं, वाक, हस्त, पाद, पायु, उपस्थ। वाक द सेंस ऑफ वॉक, टॉकिंग। हस्त हाथ, पाद पैर, हाथ पैर आवाज, पायु उपस्थ जननेन्द्रिय और मलेन्द्रिय, द जेनिटल ऑर्गन्स एंड द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। तो ये 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और एक मन, इनको धर्मानुकूल आचरण करना काम एक कहलाएगा। काम का मोक्ष, मोक्ष का फिर यहाँ अर्थ अलग है, श्री अरबिंदो ने मोक्ष का अर्थ अलग बड़ा साफ दिया है। अटेनमेंट ऑफ साल्वेशन ऑन दिस अर्थ एंड इन दिस अर्दी एग्जिस्टेंस। इसी जमीन में, इसी जमीनी हालातों में हम अपने आप को सुखी आनंदित महसूस करें, सच्चिदानंद की प्राप्ति कर सकें, वो मोक्ष माना गया है। आश्रम हमारे यहाँ 4 माने गए हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। 025, 26 से 50, 51 से 75 और 76 से 100 वर्ष की आयु मानी गई है। शरदम शते जीवित, हर व्यक्ति को कहा जाता था कि 100 साल तक जियो। तो ब्रह्मचर्य में ये माना गया है कि वो विद्या लेगा, ज्ञान लेगा। गृहस्थ में अपने परिवार का लालन पालन करेगा। वानप्रस्थ में कमाना बंद कर नहीं करेगा, लेकिन परिवार के लिए नहीं करेगा, समाज के लिए करेगा। और संन्यास में परिवार के लिए भी नहीं करेगा, समाज के लिए भी नहीं करेगा, गहन चिंतन करेगा। और ये भी ऑप्शनल था। संन्यास का मतलब ये नहीं है कि जंगलों में चले जाओ, आप इन सब से अलग रहकर समाज में भी साधु वृत्ति अपनाकर सन्यासी हो सकते हैं। रिलीजन की मैं बात कहूंगा, बड़ा टिपिकल है। भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश है जहां 5 धर्मों की उत्पत्ति हुई है। हिंदू, जैन, बुद्ध, सिख और यहां तक कि कुछ लोग ये कहते हैं कि जो पर्शियन रिलीजन है बेसिकली वो इंडिया से आया था। इंडिया से वहां गया ईरान, ईरान से वापस लोग आ गए थे वापस। लेकिन 4 तो बड़े साफ हैं, हिंदू, जैन, बौद्ध और सिखिज्म जो भारत में उदय हुए। एक और मुस्लिम धर्म भारत में उदय नहीं हुआ, लेकिन मुस्लिम धर्म का सर्वाधिक विकास और उन्नति और चिंतन भारत में हुई है। सबसे बड़े और सबसे ज्यादा मुस्लिम चिंतन के केंद्र, इस्लाम चिंतन के केंद्र आज भी भारत में पाए जाते हैं। ज्यूस और क्रिश्चियन फिलोसफी इंडिया में नहीं हुई है, ये विदेशों में ही रही है, वहां के उसके लिए मैं अभी बात नहीं करूंगा। दर्शन में मैंने ऑर्थोडॉक्स की बात की थी, अब मैं हेटेरोडॉक्स फिलोसफीज की बात करूंगा जो कि नए रूप में पाए जाते हैं। नास्तिक दर्शन भी इनको कहा जाता है। इनमें कुछ लोगों ने जो मतलब किताब में कुछ लोग ज्यादातर मानते हैं, वो फिर 6 मानते हैं। सौतांत्रिक, वैभाषिक, माध्यमिक, योगाचार, ये 4 बुद्ध धर्म से उठाए गए हैं। बुद्ध धर्म की बड़ी खास बात है, मैं 2-3 बातें यहाँ कहना चाहूंगा। पहले बुद्ध धर्म एक माह था बौद्ध के काल में। बौद्ध के काल में ही थोड़ा लोग बंटवारा शुरू हो गया था, बाद में इसके 2 टुकड़े हुए, हिनयान और महायान। बाद में इनके 4 टुकड़े हुए, सौतांत्रिक, वैभाषिक, माध्यमिक और योगाचार। कालांतर में डॉक्टर राधाकृष्णन अपनी किताब में लिखते हैं कि जो वैशाली में जो बहुत बड़ा महासम्मेलन विश्व का हुआ था, उसमें बौद्ध धर्म के 218 प्रकार के मतों के लोग इकट्ठे हुए थे। 218 मतों के लोग। इसके अलावा जैन धर्म के 2 भाग हैं। जैन धर्म का मूल जैन धर्म एक था, लेकिन बाद में इसके 2 हिस्से हुए, श्वेतांबर और दिगंबर। बाद में इसके और 2 हिस्से हुए, 13 पंथ और नव 13 पंथ। तो इस तरह से 6 ये ऑर्थोडॉक्स या नास्तिक दर्शन माने जाते हैं। सौतांत्रिक, वैभाषिक, माध्यमिक, योगाचार, श्वेतांबर और दिगंबर। इसके अलावा 2 धर्म और हैं जो इनसे अलग धारा से चलते हैं, वो है चारवाक धर्म। बौद्ध धर्म दर्शन धर्म भी है और दर्शन भी है, बड़ा सुंदर शब्द है। बौद्धिज्म इज ए रिलीजन एज वेल एज ए फिलोसफी। Hinduism is a religion as well as a philosophy. Christianity is a religion as well as a philosophy. Islam is a religion as well as a philosophy. जो मेटाफिजिकल ट्रुथ्स हैं किसी भी धर्म के, वो फिलोसफी के हिस्से में आ जाएंगे।
तो चारवाक और इस्लाम धर्म ये अलग धारा पर चलते हैं। चारवाक में मेटेरियलिज्म पर जोर दिया गया है और इस्लाम फिलॉसफी में एक अलग तरह से चिंतन किया गया है प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में। इसमें जो बात की जाती है कि कलमा, रोजा, नमाज, हज, ज़कात, इनके अनुसार धार्मिक आचरण व्यक्ति का रहता है। हमारे यदि मैं विषयों की दृष्टि से बात करूं, भारतीय दर्शन पाया जाता है। भारतीय दर्शन में जैसे मैंने बताया षड दर्शन है। इंडियन साइकोलॉजी पाई जाती है, मन, चेतना, बुद्धि, ये कहना चाहिए पंच, ये भूमिया, चित्त की भूमिया, ये सब इंडियन साइकोलॉजी में पाया जाता है। ठीक इसी तरह से चित्त वृत्ति निरोध योग की दर्शनम इति योग दर्शनम, इस तरह की। और यदि हम बात करें साइकोलॉजी में तो वो जो क्या होते हैं 5, मैं बार बार वो शब्द भूल जाता हूँ, मनमय कोश, पंचकोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनमय कोश, ज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, कोश, इंडियन साइकोलॉजी, इंडियन पर्सनैलिटी, इंडियन पर्सनैलिटी टाइप्स, ये सब साइकोलॉजी की डिटेल्स हैं। इंडियन हिस्ट्री जैसे मैंने बताया, भारतीय इतिहास अलग तरह का सबसे पुराना, प्राचीन और गौरवशाली है। इकोनॉमिक्स, कौटिल्य का अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का सबसे पुराना डॉक्यूमेंट माना जाता है, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस और कॉमर्स का। इंडियन बॉटनी वृक्षायुर्वेद के रूप में हमारे सामने उपलब्ध है। मेटलर्जी, सर पीसी रे, प्रफुल्ल चंद्र रे की किताब मेटलर्जी पर आज भी प्रमुख किताब मानी जाती है। हमारे यहाँ विमान शास्त्र की एक पुस्तक लिखी गई है, विमान शास्त्र में मेटलर्जी की बात की गई है, डिटेल्ड मेटलर्जी की। कालिदास ने मेघदूत की बात की है। अभी हमें एक अलग से विषय का थोड़ा बताना चाहूंगा, थोड़ा विषय से मैं अलग जा रहा हूँ। एक जयंत विष्णु नार्लिकर जी के हैं, बहुत 90 साल से ऊपर के हो गए होंगे शायद, वो अभी बेंगलोर में रहते हैं, अब वो बिल्कुल पब्लिक फोरम पर नहीं आते। जयंत विष्णु नार्लिकर जी ने एक इंदौर में भाषण दिया था, उसके कालांतर में पूना यूनिवर्सिटी से एक प्रोफेसर साहब आए थे जो कि उससे पहले इंडियन एयरफोर्स में पायलट थे। वो ये कहते हैं कि मेघदूत में कालिदास ने जिन स्थानों का वर्णन किया है वहां मैं विमान द्वारा गया हूं और मैंने ये पाया है कि उन जगह पर आज भी मनुष्य पैदल या सड़क मार्ग से नहीं जा सकता और वहां केवल वायु मार्ग से ही जाना संभव था। कैसे कर पाए चिंतन, ये कर पाए, इसके बारे में मैं नहीं जान सकता, लेकिन जरूर कुछ ना कुछ जानते होंगे। यदि हम प्राचीन चिंतकों की बात करें, भास्कराचार्य हुए हैं, सुश्रुत हुए हैं, चरक हुए हैं, अश्वनी कुमार हुए हैं, हलायुत हुए हैं, नागार्जुन हुए हैं, कपिल हुए हैं, वराह मेहर हुए हैं, कणाद हुए हैं, जो कि वर्ल्ड के टॉप साइंस, हमारे इंडियन फिलोसफी, इंडियन हिस्ट्री के टॉप साइंटिस्ट माने जाते हैं। बाण भट्ट हुए हैं, बाण भट्ट ने पर और भी लोगों ने कई लेख लिखे हैं, उन पर पुस्तकें भी लिखी गई हैं। कल्याण ने राज तरंगिणी लिखी है। कालिदास का तो मैंने नाम बताया। शंकराचार्य एक आधुनिक बड़े बड़े चिंतक हुए हैं। शंकराचार्य जी ने, यदि मैं 2 किताबों का वर्णन करूं, हालांकि इन्होंने बहुत किताबें लिखी हैं, 2 किताबों का विशेष रूप से वर्णन करना चाहूंगा मैं, विवेक चूड़ामणि और दृग दृश्य विवेक। इसमें फिर वेदांत की बात की गई है, वेदांत दर्शन की बात की गई है। वेदांत दर्शन के भी 3 अंग माने गए हैं, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग। ठीक इस तरह से जो गीता है हमारे यहाँ, कृष्ण ने गीता का जो उपदेश दिया है, गीता के भी 3 प्रकार की व्याख्याएं मिलती है, ज्ञान मार्ग की व्याख्या, कर्म मार्ग की व्याख्या और भक्ति मार्ग की व्याख्या। ये तीनों व्याख्याएं गीता की हमारे यहाँ मिलती है। आधुनिक चिंतकों में यदि मैं बात करूं, भारत के जो कि हमें मॉडर्न कहे जाते हैं लेकिन आज भी 50-100 साल पुराने, 50 साल पुराने हैं, विश्वेश्वरैया इंजीनियर, सारी दुनिया के इंजीनियर्स आज भी हैरान हैं कि हमारे यहाँ विश्वेश्वरैया जैसा इंजीनियर हुआ है। सीवी रमन, सत्येंद्रनाथ बोस, जिनके नाम पर बोसोन पार्टिकल्स रखा गया नाम, ये वही है हेडन कोलोडन एक्सपेरिमेंट जो था उसमें नाम रखा गया है। मेघनाथ साहा जी, होमी जहांगीर भाभा, एस चंद्रशेखर वर्ल्ड के टॉप साइंटिस्ट रहे हैं, विक्रम साराभाई,
GN रामचंद्रन, जयंत विष्णु नार्लिकर, हरीश चंद्र जी, संदीप चक्रवर्ती जी, केमिस्ट में मैं बात करूं हरगोविंद खुराना जी जिन्हें नोबेल प्राइज मिला, प्रफुल्ल चंद्रे जी, SN बोस फिर माना जाएगा, CNR राव आज भी जिंदा है, वर्ल्ड के टॉप साइंटिस्ट में से माना जाते हैं आज भी, C शेषाद्री। बायोलॉजी में मैंने पढ़ा है V पुरी का, हम MSc बॉटनी में पूरी कार्पल थ्योरी पढ़ते थे। जगदीश चंद्र बोस के बारे में, P महेश्वरी जिनकी किताब पढ़ी और मैंने इनको देखा भी है, पंचानन महेश्वरी, इनकी एम्ब्रियोलॉजी ऑफ द एम्ब्रियोस्पर्म्स आज भी दुनिया की एक शानदार किताब मानी जाती है। जहां तक मैं बात करूं कि पुस्तकों की बात करूं, एंशिएंट इंडियन एजुकेशन में RK मुखर्जी की KEAY प्रमुख लेखक हैं, हालांकि PL रावत साहब भी एक लेखक हैं, नरूला एंड नायक भी लेखक रहे हैं। एक इंडियन उसके है क्या कहते हैं, हमारे प्लानिंग कमीशन के मेंबर हैं संजीव सान्याल, उन्होंने एक किताब लिखी है लैंड ऑफ 7 रिवर्स, एक बहुत शानदार पुस्तक है, मैं यह रेफरेंस देना चाहूंगा। लैंड ऑफ 7 रिवर्स में भारत का जो एक कहना चाहिए द कल्चरल एंड ज्योग्राफिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में बहुत शानदार किताब है। यहाँ मैं एल्विन टॉफलर की किताब का हवाला देना चाहूंगा, थर्ड वेव और फ्यूचर शॉक, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉटेजेस की बात कही गई है और भारत का उसमें एग्जाम्पल दिया गया, और उसमें एक बात कही गई है कि एक युग आएगा जब बैलगाड़ी भी रहेगी और कंप्यूटर भी रहेगा। सो बैलगाड़ी और कंप्यूटर हमें दोनों चाहिए, और इंडिया ये 2020 के नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के डॉक्यूमेंट में भी ये बात कही गई है कि हमें गुरुकुल सिस्टम भी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉटेजेस भी चाहिए, जिनकी बात वो एल्विन टॉफलर साहब करते हैं। ये शूमाकर ने एक अपनी किताब है, इनकी 2 किताबों ने दुनिया में तहलका मचाया था, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, जिसमें उन्होंने कहा कि और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंडिविजुअल्स के जो छोटे छोटे काम है, सब छोटे लेवल पे होना चाहिए, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। इनकी अगली किताब है गाइड फॉर द परप्लेक्स्ड, इसमें इन्होंने आध्यात्म की बात की है, भारतीय चिंतन की बात की है। एक और किताब इसी तरह की बात करती है, एक महिला का, एक व्यक्ति क्रिश्चियन फिलोसफी में पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं किया जाता, वो सज्जन आज भी जिंदा है, मेरी उनसे 2 बार फोन पर भी बात हुई है। ब्रायन वेस्ट साहब की किताब है, जिनमें दुनिया में लाखों लाखों किताबें बिकी हैं, उनकी किताब है मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स, और उसमें एक ऐसी महिला की बात की है जिसने अपने 5000 वर्ष के जन्मों को बताया कि ये जन्म ऐसे थे और ये जन्म, उसने अपने जन्मों के पुनर्जन्मों के बारे में बात की है। वो कहते हैं मैं क्रिश्चियन हूं, मैं बिलीव नहीं करता, लेकिन वो जो मेरे बाबा दादा परदादा और इन सबको मैंने बाद में भी प्रूव किया, वो सही निकला, उन सबके नाम लेती है और बताती है कि कौन क्या थे। भारत में एक महिला हुई है पट्ट महादेवी शांतला, श्रवण बेलगोल कर्नाटक में एक जगह है। श्रवण बेलगोल जैन परंपरा का एक तीर्थ है। श्रवण के बेलगोल में माना जाता है कि पट्ट महादेवी शांतला एक ऐसी महिला थी जो हिस्ट्री जानती थी, आर्किटेक्चर जानती थी, ज्योतिष जानती थी, कल्प, छंद, निरुक्त, व्याकरण, मृग विद्या, इन सब के बारे में, वेद के बारे में, वेदांग के बारे में, उपनिषदों के बारे में एक महाज्ञानी महिला हुई है, जिनको सारी आसपास के दूर दराज के लोग तक भी उसका लोहा मानते थे, और बड़े बड़े देश और विदेशों से विद्वान उनके पास अपनी ज्ञान पिपासा शांत करने आते थे। और ये अभी बहुत दूर की, ज्यादा दूर की बात नहीं है, मुश्किल से 100 साल पुरानी बात है, पट्ट महादेवी शांतला। मैं दोस्तों यहीं रुकूंगा, मुश्किल से 10 मिनट बाकी हैं। अब आप सवाल पूछ सकते हैं, जितने मर्जी सवाल पूछें, आपका स्वागत है। माई बेस्ट विशेस, गुड लक। वीडियो ऑन रखिए, मैं केवल उन्हीं के सवालों के उत्तर देना चाहूंगा जो ऑडियो ऑन के साथ साथ वीडियो भी ऑन रखेंगे। यू आर free to ask questions. Participants, if you have any question or query, you may ask. सुरेंद्र जी प्लीज, सुरेंद्र जी सवाल पूछे। डॉक्टर सुरेंद्र जी प्लीज आस्क द क्वेश्चन। लगता है रुक गए फिर। नमस्कार सर, मैं जी जी सर, मैं पूछना चाहूंगी बोलिए। Sir, though it's really very difficult subject to understand for me, really difficult. It need a very deep-rooted study. Sir, can you please tell me? See, I just want to write some research paper on it. Suppose. So, what are some ongoing research initiative related to IKS, sir?
बहुत सिंपल है, द बेस्ट सोर्स दिस डेज इज गूगल। गूगल में डालिए एंशिएंट इंडियन एजुकेशन के बारे में राधा कुमुद मुखर्जी की बात पढ़िए। एंड Okay, sir. अभी एक और किताबें आ रही हैं, मैं दो चीजों को साथ साथ मिलाना पड़ेगा आपको। जी सर। इंडियन नॉलेज सिस्टम में आपको मॉडर्न बायोलॉजी, मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न केमिस्ट्री को मिलाना पड़ेगा ऑन वन हैंड, एंड ऑन द अदर हैंड आपको इंडियन स्क्रिप्चर्स को मिलाना पड़ेगा, और तब आप कंपेयर करके इनके बारे में बात कर सकती हैं। जैसे Definitely. मैंने पाराशर स्मृति की बात की है, इसमें आपको मेटलर्जी, कॉपरनिकस, इन सबको केमिस्ट्री और फिजिक्स की दृष्टि को जानना पड़ेगा, फिर इनको कंपेयर करना पड़ेगा। अश्वनी कुमार की बात की है, मेडिसिन, मॉडर्न मेडिसिन, और अश्वनी कुमार, सुश्रुत और चरक, इनकी बात करनी पड़ेगी। इस तरह से आपको टिपिकल दो तरह के लिटरेचर को साथ साथ लेकर चलना पड़ेगा। It will be a kind of multidisciplinary kind of. Very true. It cannot be simple single discipline research. No, it has to be multidisciplinary. और यही बड़ी खास बात थी मैडम बरखा जी, आप जानिए कि आप कल्पना करें कि 18 विषय दुनिया की एक भी यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज वगैरह में ज्यादा से ज्यादा 4 विषय ग्रेजुएशन में पढ़ाए जाते हैं। हमारे यहाँ जो जिसको आप ग्रेजुएशन करें, कुछ भी कहें, अमेरिका में तो एक और टिपिकल रहा है। मेरे जो ग्रैंडसन है उसने प्राइमरी का प्री प्राइमरी पास करी, प्री प्राइमरी में उसको कहते हैं ग्रेजुएशन सेरेमनी में आ जाइए। प्री प्राइमरी में उसने फिर यूकेजी पास करी कि इसकी ग्रेजुएशन सेरेमनी होगी। तो यदि गुरुकुल सिस्टम की ग्रेजुएशन सेरेमनी को देखें तो 18 विषयों को सम्मिलित रूप से पढ़ाना आसान काम नहीं है। सो इट हैज टू बी इंटीग्रेटेड multidisciplinary kind of research. You cannot avoid that. Sir, is there anything like a Western knowledge system? Can we do a comparison of it? If Not exactly, क्योंकि वेस्टर्न एक नहीं है। देखिए इंडिया तो एक है। इंडिया में एक खास बात यह है, जो एक बहुत बड़ा एक नॉलेज सिस्टम से पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, कश्मीर का शैव सिस्टम ले लीजिए या कम्बन की रामायण ले लीजिए, द वन थिंग विच यूनाइट्स इंडिया इज संस्कृत। वेस्टर्न में ऐसा नहीं है। होमर है, डांटा है, शेक्सपियर है, जो अलग अलग लोगों की अलग अलग भाषाएं हैं, इसलिए वहां यूनाइट करने वाला एक फैक्टर नहीं है। True. वन मेजर फैक्टर जो वेस्टर्न फिलोसफी को एग्जिबिट करता है वो है उनका मेटीरियलिस्ट एटीट्यूड टू लाइफ। Right, sir. वेस्टर्न सिस्टम में शोपेनहावर या कांत जैसे आइडियलिस्ट कम मिलते हैं, डूवी और बर्टन रसल जैसे मेटीरियलिस्ट ज्यादा मिलते हैं। तो वेस्टर्न सिस्टम थोड़ा बहुत बटा हुआ है, उसको अलग अलग जर्मन फिलोसफी, फ्रेंच फिलोसफी, इटालियन फिलोसफी, इस सबको अलग अलग तरह से देखना पड़ेगा। ग्रीक फिलोसफी, ग्रीक एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, उसके बिना वेस्टर्न फिलोसफी कंप्लीट नहीं कर सकते। तो इसको एंगल के लिए वहां भी मल्टीडिसिप्लिनरी एंगल चाहिए, लेकिन वेस्टर्न फिलोसफी के लिए कोई सिंगल बुक नहीं है। इंडियन नॉलेज सिस्टम के लिए हो सकता है मिल जाए 2-3-4 पुस्तकें। ए गुड क्वेश्चन, आई अप्रिशिएट। हाँ जी, कोई और वीर या वीरांगना दोस्तों वीडियो ऑन कीजिए, वीडियो ऑन प्लीज। So one more thing. So what do you think is the biggest challenge for the preservation and transmission of it? I mean, मैडम आपने मेरे मन की बात कही है। एक्चुअली जो मेरा सबसे बड़ा दर्द मान लें या नाराजगी मान लें, इंडियन कॉलेज यूनिवर्सिटी के टीचर को इंटरनेशनल लेवल का जो स्कॉलर होना चाहिए वो नहीं है। उसको जो एक मल्टीडिसिप्लिनरी मास्टर होना चाहिए। फिजिक्स का टीचर है तो केवल फिजिक्स से काम नहीं चलेगा। फिजिक्स, फिलोसफी, संस्कृत, आप श्रोडिंगर को ले लें, इंडियन फिलोसफी का बहुत बड़ा वो था, चिंतक था। श्रोडिंगर ले लें, आइंस्टीन ले लें, हेजनबर्ग ले हैं, दे हैव बीन वंडरफुल फिलोसोफर्स आल्सो। एक्चुअली जो इंडियन स्कॉलर है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी का टीचर है, उसको एंशिएंट विजडम एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी दोनों का मास्टर होना चाहिए, जो कि वो नहीं है। वो सारी उम्र अपना असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट से प्रोफेसर, इसी 99 के फेर में लगा रहता है। मेरा सबसे बड़ा दर्द कह लें या चैलेंज कहना यही है, इंडियन यूनिवर्सिटी, कॉलेज यूनिवर्सिटी के टीचर्स को इंटीग्रेटेड नॉलेज का जो इंटरनेशनल मास्टर होना चाहिए, वो एक बड़ा चैलेंज मैं मानता हूं।
जी सर सर। नमस्कार। सर नमस्कार नमस्कार। जी, अभिषेक जी बताएं सर। सर मैं राजीव गांधी विश्वविद्यालय अरुणाचल प्रदेश में हूँ। अरे वाह, वंडरफुल। जी सर नमस्कार, प्रणाम। और मौसम थोड़ा यहाँ ठीक नहीं था, इसलिए बीच में कोई बात मैं नहीं सर, आप वैसे बिना उसके भी बोल देते हैं, बिना वीडियो के भी चलेगा, बताएं प्लीज। जी, मैं मेरा सर ये दुराग्रह नहीं है, आग्रह रहता है। जी जी जी, मैं सर ये सब मैंने काफी दिन से हम लोग इंडियन नॉलेज सिस्टम पे बात कर रहे हैं, सिलेबस भी बना रहे हैं, अकॉर्डिंगली पढ़ाई लिखाई भी चल रही है। लेकिन सर मुझे ये इस बात का भय बार बार लगा रहता है कि मैं हिंदी पढ़ाता हूँ और हम तो पूरा मेडुअल पोएट्री पढ़ाते हैं, कबीर को पढ़ाते हैं, चंद्रवरदाई तक जाते हैं, सरापा तक जाते हैं। मुझे ये डर लगा रहता है कि कहीं इस चक्कर में हम अतीत जीवी न हो जाएं। मैं सर एक मिनट अपनी बात एक बार कह लेता हूँ। मुझे ये दोनों चीजें मुझे फर्क लगती हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा और भारतीय ज्ञान परंपरा का राजनीतिकरण। ये इन दोनों चीजों में बहुत अगर हम फर्क नहीं करेंगे तो हम फंस जाएंगे, क्योंकि भारतीय ज्ञान परंपरा तो लोक संपदा है, अवधी का, भोजपुरी का, किसी भाषा का। अरुणाचल में हूं मैं, यहाँ की ट्राइब्स हैं, इनकी लैंग्वेजेज हैं, बहुत लोक संपदा है। लेकिन अगर हम लगेंगे ये इस अप्रोच में हम आ जाएंगे, उफ हमारे पास ही सब कुछ था और किसी के पास कुछ नहीं था, ये फिर राजनीतिकरण है मेरे समझ से। और इसमें मामला, हाँ इसमें मामला फंस जाता है। और आजकल मैं देख रहा हूँ कि एक नया फैशन ये है कि जो कक्षा 10 भी ठीक से पास नहीं कर पाया है, वो व्हाट्सएप में मैसेज करता है कि हमारे पास तो ये था, हमारे पास तो वो था। भैया पहले कक्षा 10 पास कर लो। और दूसरी समस्या सर मैं आपसे कहूँ, आपकी एक अच्छी बात हमको लगी कि इंडियन जो टीचर हैं यूनिवर्सिटीज में उनकी क्या स्थिति है। मैं सर आपको बताऊं, इतना सर पेपर वर्क हमारे ऊपर लाद दिया गया है बुरी तरीके से, और ये सब कुछ इतना बढ़ा दिया गया है। आप घंटों मीटिंग में बैठे रहिए, बिना तुक का बैठे रहिए, आप घंटों पेपर वर्क करते रहिए, आप पढ़ाएं चाहे कुछ ना, लेकिन आप एंट्री करते रहिए सारी चीजों की। ये सब समस्याओं के बीच में अध्यापक पढ़ाए कितना, वो पढ़े कितना, ये कुछ चुनौतियां हैं। व्यवस्था हमसे डिमांड बहुत करती है, लेकिन वो सारा पेपर वर्क हमसे कराएगी, सारा काम हमसे कराएगी जो हमारे काम का नहीं है। और सर ये ज्ञान परंपरा वाले पे मैं मैं इस बात को लेकर चिंतित हूँ कि हम लोक परंपरा को खूब जाने और आगे बढ़ाएं। हमें भारतीय ज्ञान परंपरा का गर्व है सर, लेकिन इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए सर। धन्यवाद सर। मैं 100% सहमत हूं आपके एक एक शब्द से। बस मैं सिर्फ एक चीज और जोड़ ले, यदि आपने कामिल बुल्के जी की बायो हिस्ट्री पढ़ी हो, कामिल बुल्के जी किस तरह के चिंतक थे, कितना काम करते थे, कितना पढ़ाते थे। एक और हुए हैं भारत में बहुत बड़े महान चिंतक, महामहोपाध्याय पंडित गोपीनाथ जी कविराज। बड़ा बड़ा नाम लिया जाता है, विश्व के महान चिंतकों में नाम लिया जाता है। उनकी जीवनी भी लिखी गई है, एक मनीषी की लोक यात्रा। वो महज एक कॉलेज के टीचर थे, बाद में कॉलेज के प्रिंसिपल बन गए संस्कृत के। मैं आज भी विश्वास नहीं कर पाता कि एक व्यक्ति इतना बड़ा काम सारी उम्र में कर पाता है, जो कि कॉलेज टीचर है, कॉलेज प्रिंसिपल है। तीसरी बात, मैं आपकी बात से फिर सहमत हूं कि राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए और ज्यादा हो रहा है, ये नाश करने की ओर कदम है। मैं 100% सहमत हूं। ठीक इसी तरह से कॉलेज यूनिवर्सिटी के टीचर्स को जिस तरह से ज्ञान का एक जो पुंज होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा, इन सारी बातों को मिलाएं। लेकिन फिर भी मैं एक चीज कहना चाहता हूं, जो एक चीज आप शायद सहमत हो। यदि आज एक बड़ा, मैं उसका भी फेवर में नहीं हूं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज एक बड़ा गलत काम कर रही है कि आपको 10 से 5 तक हाजिरी देनी पड़ेगी और वो अंगूठा लगाना पड़ेगा सुबह शाम तक। लेकिन इसी के साथ ये भी जोड़ा जाए कि मैंने अपने हेड और डीनशिप में 8 साल रहा, मैंने 5 बार नोटिस दिया कि भैया वो 4 घंटे बता दो जब आप आते हो डिपार्टमेंट में। हमें दोनों का समन्वय चाहिए। एक समय पर टीचर 1 घंटे भी नहीं आता था। 2001 में हमने 85 ऐसे टीचर्स आइडेंटिफाई किए जिन्होंने पिछले साल में एक भी कक्षा नहीं ली थी। इन सबको यदि जोड़े और फिर हम कहें कि जो अंगूठा सिस्टम है 10 से 5 का, इन सबको जोड़े तो हमें एक बहुत बढ़िया इंटीग्रेटेड सिस्टम चाहिए। हमारी नैतिकता का जो बरखा जी सवाल पूछ रही थी, इट इज ए चैलेंज टू अवर मॉरलिटी कि हम यदि कॉलेज टीचर्स 8 घंटे ना आए, कॉलेज यूनिवर्सिटी इंटर कॉलेज सारे
8 घंटे ना आए, 6 घंटे भी ढंग से काम कर लें, ये दुनिया को हम बहुत कुछ दे सकते हैं। क्योंकि एक चीज और मैं सार रूप में कहना चाहूंगा, आज भी मैं अमेरिका बहुत बड़ा, मैं 30 मार का नहीं हूं, खुदा का बड़ा भाई नहीं हूं, मैं अमेरिका 12 बार हो आया हूं। आज भी द बेस्ट ऑफ द टैलेंट ऑफ द वर्ल्ड इज इन इंडिया, नेक्स्ट इज चाइना, उसके बाद जर्मनी है। मैं जर्मनी को तीसरे नंबर पर रख रहा हूं। द बेस्ट ऑफ द टैलेंट ऑफ द वर्ल्ड लाइज इन इंडिया, और हम मौका मिलने पर बहुत कुछ कर सकते हैं। आप सभी करें, आप सभी बढ़ें, मेरी शुभकामनाएं। मैं जानकर यहाँ रुकता हूँ। महेंद्र जी ने बीच में हाथ खड़ा किया था, गलती से खड़ा किया था या कैसे मुझे नहीं मालूम। बलविंदर चहल जी पूछते हैं, हमारे पास परंपरा है, फिर हमारे बहुत बढ़िया सवाल कहा है सर, मैं आपसे 100% सहमत हूँ। एक चीज मान लें, भारतीय ज्ञान परंपरा या भारतीय सिस्टम का यदि नाश है तो वो कास्ट सिस्टम है। कास्ट सिस्टम भारत का नाश कर रहा है, करेगा, यदि हम कास्ट सिस्टम से दूर नहीं हुए। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। महेंद्र जी सवाल पूछें। महेंद्र जी प्लीज। नो सर, नो सर, कोई गलती से सवाल हो नहीं, गलती से हाथ खड़ा हो गया था, कोई बात नहीं। आई स्टॉप हियर, टाइम भी हो चुका है। मेरी शुभकामनाएं। आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों ने मुझे सहा। थैंक यू वेरी मच। आई फील ऑनर्ड एंड इलोटेड। जाति ऐसी ही है कि जाते ही नहीं। मैं वसीम साहब एक चीज कहना चाहूंगा, बहुत बड़ा सवाल है ये, मेरी मेंटेलिटी पर निर्भर है। मैं अपने घर में पानी किसको पिलाता हूँ, चाय किसको पिलाता हूँ, खाना किसको खिलाता हूँ, मैं अपने आसपास कैसे रहता हूँ, ये सबसे पहले बात मेरे पर लागू होती है। जाति प्रथा तब खत्म होगी जब मैं खत्म करूंगा। बहुत बड़ा सवाल उठा रहे हैं आप, पर मैं सहमत हूँ। यस, दैट इज ट्रू। आई स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। यस, वेलकम। Thank you very much, sir. सर क्या क्लास से लीव कर सकता हूँ? Thank you. We need now.